Hello, good evening to all of you. Uh, Let us wait for 5 minutes, then we'll start. Other people will join within few minutes, then we'll start. Am I audible? Hello, hello. Yes, sir. Okay, just wait. Huh? Okay. चल धनश्री હવે તું બહાર જા ધના એ ડીંગલી બહાર બહાર જાય પપ્પા અહીંયા હવે કામ કરશે લોક સાહેબ ચાલો અત્યારે બાર બાર બંધ થઈ ગયું બંધ થઈ ગયું મને એવી જગ્યાએ મૂવી કરને એ टाइम बहुत बेकार है सच में चालू करा तो लेक्चर मेरा भी पहुंच गया है पता चला 5 મિનિટ રાહ જોઈએ આપણે ને પછી ચાલુ કરીએ 6:35 वीडियो क्या खबर देखने को क्या वीडियो ये वो भी 1 मिनट का है देखते समय उसको बाद में क्या है ऐसा रिकॉर्ड करके रख दे तो अच्छा अपना काम हो जाओ बाकी तो पूछ ले क्या बनाना है क्या हो हाँ दुनिया इसकी कोई प्रिंट विंट करा दी ना कोई पेपर की मेरा बहुत नहीं है फाइल का
तो उसको कैपिटल गेन चलेगा ना, ऐसा कुछ बोले ना। कैपिटल गेन तो यूनिट 2 मांग रहा ना हम लोग, तो यूनिट 3 यूनिट 4 तो चला दिया ना, सारा यूनिट 3 यूनिट 4 में क्या खबर है। अभी कहाँ यूनिट का કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ છે યાર 70 પ્રશ્નો આવશે એમાંથી તમારે 35 એટેન્ડ કરવાના કઈ યુનિટ 1 યુનિટ 2 ક્યાં જોવાની જરૂર છે બે મિનિટ રાહ જોઈએ 6:35 આપણે ચાલુ કરી દઈશું ઓકે So, good evening to all of you. Hello, am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. See, I have shared my video for the introduction of the capital gain that you all may have seen. Okay, आपने वो वीडियो देख लिया है पूरा इंट्रोडक्शन मैंने कैपिटल गेन का आपको भेजा था ठीक है वीडियो वो वीडियो आपने देख लिया होगा सिंस दैट आई हैव डिस्कस दैट व्हाट इज कैपिटल गेन व्हाट इज कैपिटल असेट ओके and when the capital gain is taxable okay so that I have discussed with you in that particular video if you have not seen you see because I have from last 2 days I am sharing that video okay और उसमें आपको बताया गया है कि भाई आप यहाँ से आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सबने देख लिया ना हेलो Yes, sir. ओके तो वीडियो में मैंने लास्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया था what was the last point we have discussed in that particular video Hello, Definition of transfer of capital asset. hello, sir. Last point was transfer of capital asset or relinquishment of capital asset. ओके तो हमने रिलाइंक्विशमेंट और ये देखा अभी ओ, ये हाँ हाँ कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसमें डिस्कस किया है नहीं किया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिस्कस किया है नहीं किया है कैपिटल एसेट No, sir. No, No. sir. okay so we have discussed in that particular video up to the definition of transfer so you know that see so far as capital gain are concerned see there are two types of capital gain okay one is a short term capital gain another one is the long term capital gain now what is short term capital gain so capital gain arise on transfer of the short term capital asset जो short term capital asset है वो short term capital asset है उसको ट्रांसफर करने से जो कैपिटल गेन अराइज होता है okay that is a short term capital gain so capital gain arise on transfer of the short term capital asset
is known as a short-term capital gain. And see, the long-term capital gain means what? Capital gain arise on transfer of long-term capital asset. अगर long-term capital asset आपके पास है, long-term capital asset, उसको ट्रांसफर करने से अगर कोई गेन अराइज होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. आप बोलोगे सर एक ही इनकम है ना, कैपिटल गेन की ही इनकम है, तो उसको अलग अलग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करने की क्या जरूरत है? जरूरत है बिकॉज सी द टैक्स रेट्स अवेलेबल ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर डिफरेंट. ओके, सो अलग अलग कैपिटल गेन का रेट अलग अलग है. गवर्नमेंट डोंट वांट टू चार्ज द टैक्स ऑन द ऑल द कैपिटल गेन एट द सेम. Okay, that's why government has distributed or classified the capital gain into two categories, and that is a short-term capital gain and long-term capital gain. Now, what is short-term capital gain? So, short-term capital gain means the capital gain arise on transfer of the short-term capital asset is a short-term capital gain. और long-term capital asset को transfer करने से जो gain होता है उसको हम long-term capital gain कहेंगे. Now, this question arises that what is short-term capital asset? आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई किसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहेंगे और किसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कहेंगे. तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. मटीरियल देखो टाइप्स ऑफ द कैपिटल असेट. तो सी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इज व्हाट? देखो एक सिंपल सा नियम दे दिया है, रूल दे दिया है कि इफ पीओएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल असेट, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द कैपिटल असेट इज लेस देन और इक्वल टू मतलब 36 मंथ और उससे कम, एग्जैक्ट 36 मंथ और उससे कम अगर शॉर्ट आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, then your asset is known as what? Short term capital asset. STCA means short term capital asset. और suppose if your period of holding is more than 36 month, अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो वो असेट को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. लेकिन देखो ये रूल के कुछ एक्सेप्शंस है. जनरल रूल तो आपको पता चल गया कि भाई व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मीन्स व्हाट? जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? एग्जैक्ट 36 मंथ है या तो फिर 36 मंथ से कम है. ओके, 36 मंथ से कम है. ओके, सो इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन और इक्वल टू द 36 मंथ, then it is a short term capital asset. Now if the period of holding, okay, period of holding is greater than 36 month, then we can say that that asset is what? Long term capital asset. तो ये डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. लेकिन देर आर फ्यू असेट्स, कुछ असेट ऐसी है जिसमें 36 मंथ की जगह वो लॉन्ग टर्म मतलब 36 मंथ इज व्हाट? इट इज द बेंचमार्क और इट इज द पॉइंट एट विच वी कैन डिटरमाइन दैट 36 मंथ और उससे कम है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ और उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म. ओके, तो ये आप डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, लेकिन देर आर फ्यू असेट्स, उसके केस में वो 36 की जगह में 12 महीने देगा. तो देखो कौन सी असेट में 12 महीने के बेस पे डिसाइड होता है. तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो देयर आर दीस असेट्स. ओके, देयर आर फ्यू असेट इन विच द कैपिटल असेट इज द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. इट डिपेंड्स ऑन द 12 मंथ. अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग is more than 12 months in case of these 4 assets, then these assets are treated as a long term capital asset. ऐसी 4 असेट है जिसमें 36 मंथ हम नहीं देखते लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन हम उसमें 12 महीने का ही पीरियड देखते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी असेट है जिसमें 12 मंथ के बेस पे हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करते हैं? तो दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. ओके, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए हैं ऐसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपके पास है
और उसमें आपको देखना है कि वेदर दी कैपिटल कैन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ दिस असेट इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो आप देखोगे भाई असेट कैसी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो जनरली हम क्या करते हैं 36 मंथ देखते हैं। बट इन केस ऑफ लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ऐसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप बेच रहे हो, और इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब जब से परचेस किया और सेल करते हैं उसके बीच का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ के से ज्यादा है, ओके, देन इट इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म। Okay, here you don't have to see the 36 month, but instead of 36 month you have to check the 12 month। okay, वैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी हो, मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अलावा अगर डिबेंचर है, बॉन्ड है, ओके, यूनिट्स नहीं लेने। यूनिट्स मतलब जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं उसको छोड़ के, म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये भी यहाँ ही आ जाता है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और सी एनी अदर म्यूचुअल फंड। ओके, एनी अदर मतलब यहाँ ए होना चाहिए, एनी अदर म्यूचुअल फंड। ईओएमएफ मतलब एनी अदर म्यूचुअल फंड, यहाँ एओएमएफ होना चाहिए, ईओएमएफ लिखा है लेकिन एनी अदर म्यूचुअल फंड मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड के आपके पास यूनिट्स है। ओके, वेदर लिस्टेड और नॉट। देखो यहाँ ये दोनों में पहले में क्या लाइन लिखा है, पहला वर्ड लिस्टेड लिखा है, लेकिन यहाँ यूनिट्स के केस में अगर लिस्टेड है या नहीं है, बट लिस्टेड यूनिट के केस में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए हमें पीरियड 12 मंथ ही लेना है। क्योंकि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड, ये चारों सिक्योरिटीज के केस में आपको 12 मंथ का पीरियड कब लेना है, ओनली इफ इट इज लिस्टेड। इफ इट इज नॉट लिस्टेड यू डोंट हैव टू टेक द 12 मंथ, ओके, बिकॉज फॉर अनलिस्टेड द अनदर पीरियड इज गिवन, दैट इज 24 मंथ। ओके, तो दैट वी विल चेक लेटर ऑन। और देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स हमने डिस्कस किया है आगे कि व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड, दैट वी हैव डिस्कस इन दी पीजीबीपी, इन अदर सोर्सेज, दोनों में हमने डिस्कस किया। तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स भी है, आपने परचेस किया और उसको सेल करते या रिडीम करते हो, तो उसके बीच का पीरियड अगर एक महीने, एक साल से मतलब 12 मंथ से ज्यादा है, तो ये सभी असेट, लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी मींस बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, और लिस्टेड और अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई। यूटीआई गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड की कंपनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है उसको हम कहते हैं एनी अदर म्यूचुअल फंड, और जीरो कूपन फंड बॉन्ड। तो ये सभी के केस में हमें वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म वो डिसाइड करने के लिए हम क्या लेंगे, 12 मंथ। अभी देर आर टू असेट्स, देर आर ओनली टू असेट्स इन केस ऑफ विच इंस्टेड ऑफ 12 मंथ और 36 मंथ्स वी हैव टू चेक 24 मंथ। मतलब ये दो असेट हैं, वो लॉन्ग टर्म कब बनेगी, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, और अगर 24 मंथ से कम पीरियड है आपका होल्डिंग तो इट इज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म। तो देखो 24 और 24 से कम है तो इट इज अ शॉर्ट टर्म, और 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो ऐसा कौन से केस में हेलो होगा, सर। इन केस ऑफ हेलो अनलिस्टेड। यस सर, वो ईओएमएफ का फुल फॉर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा। सॉरी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ओके, आप लिख लेना ईओएमएफ मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और दूसरे भी म्यूचुअल फंड होते हैं बेटा, उसके यूनिट्स के केस में देखो यूनिट्स होते हैं ना, वो इक्विटी ओरिएंटेड भी हो या डेप्ट ओरिएंटेड हो, दोनों के केस में 12 मंथ ही रहता है, क्योंकि यहाँ यूनिट्स ही लिख दिया है। देखो यूनिट्स यहाँ पे नहीं आता, तो 36 में भी नहीं आएगा, लेकिन यू शुड रिमेंबर दैट सी इन केस ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई के कोई भी यूनिट्स है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ये दोनों के केस में आपको 12 मंथ लेना है। ओके, नाउ सी इन केस ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। थैंक यू बेटा फॉर ड्रॉइंग माय अटेंशन। ओके, मैं गलत जा रहा था, तो वेलकम आप सर। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपको देना है। अभी देखिए अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, देखो लिस्टेड है तो 12 मंथ, लेकिन अनलिस्टेड है, अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, अगर शेयर इन ए प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कोई भी है, लिस्टेड नहीं है शेयर, तो उसमें आपको 24 मंथ्स लेना है इंस्टेड ऑफ 12 मंथ। और देखो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसके केस में भी आपको वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, वो कितने महीने के बेस पे डिसाइड करेंगे हम, 24 मंथ्स के बेस पे। ये चार असेट के केस में 12 मंथ के बेस पे, और इसके अलावा कोई भी असेट है तो उसमें कितना लेंगे हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, 36 मंथ। तो 36 मंथ और लेस है शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है लॉन्ग टर्म, 12 मंथ और लेस है ये सभी असेट के केस में तो इट इज अ शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। यहाँ ये दो असेट के लिए
24 मंथ और उससे लेस है शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो देखो हमने अब तक वो आगे वाला मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर और ये लेक्चर यहाँ तक क्या देखा कि भाई सबसे पहले कैपिटल असेट किसको कहते हैं वो हमने देखा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द कैपिटल असेट एंड व्हाट इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, दैट वी हैव डिस्कस। देखो सबसे पहले आपके पास कैपिटल है और दैट कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड बाय यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने वो कैपिटल असेट ट्रांसफर की है। ओके, सो ऑन ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट इफ एनी गेन इज अराइज देन दैट इज टैक्सेबल। ओके, आपको मैंने वो लेक्चर में आपको कंडीशन भी बताई कि भाई व्हेन द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। अगर आपके पास कैपिटल असेट है, देखो व्हेन द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन योर हैंड, इफ देयर इज अ कैपिटल असेट, कोई कैपिटल असेट है, वो कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर की है, वो ट्रांसफर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की है और ऑन द ट्रांसफर इफ एनी गेन इज अराइज, ओके कोई गेन अराइज हुआ है, देन दैट गेन इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर वो गेन एग्जम्प्ट नहीं है तो एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्पशन के सेक्शंस हम पढ़ेंगे। तो ये तीन कंडीशन, कैपिटल गेन है, ट्रांसफर कैपिटल असेट है, ट्रांसफर की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने ट्रांसफर की है और उस पर गेन हुआ और वो गेन एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन एग्जम्प्ट नहीं है इट विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। भी एग्जम्प्ट कब होगा वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। नाउ कैपिटल गेन अराइज होता है तो आपको मैंने एक चीज बता दी कि व्हेन द कैपिटल गेन इज अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, it is a short term capital gain, or when the capital gain arise on transfer of the long term capital asset and on that whatever gain is arise, that is a long term capital gain. Okay, now in the next slide or next page we are supposed to discuss that how to compute the capital gain. So if you see the computation of capital gain under section 48 कि capital gain कैसे calculate होता है ये हमें सीखना है। okay, so see सबसे पहले आपको क्या लेना है कि बहुत सिंपल लॉजिक है, कहीं बहुत मोटी वस्तु नहीं, इट इज वेरी सिंपल टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। ओके, सो देखो ये कैपिटल गेन पूरा चैप्टर में आपके सिलेबस में नहीं रखने वाला हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, और जब तक ये कॉम्प्लिकेशंस आपको मैं कब एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर आपका रेगुलर है, इफ आई एम टीचिंग विद द चॉक एंड बोर्ड, then by taking the example of each and every point it is possible to teach the capital gain. So see what I have decided that in capital gain, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट रखा है कि बाकी सभी चैप्टर का मैंने एक भी प्रोविजन छोड़ा नहीं, आपको पूरा सब पढ़ा, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ छोड़ देना है कि पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आई जस्ट हैव टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कैपिटल गेन। सो सी पूरा सब कुछ हम नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, some selected provisions of the capital gain that we have to learn, that what is capital asset, what is capital gain, how to compute the capital gain, in which situation capital gain is not taxable, what are the exemption under the capital gain, and see what is the rate applicable to the capital gain। बस इतने पॉइंट हमें देखने हैं। कुछ स्पेशल केसेस के लिए जो कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, फॉर एग्जांपल सपोज ये नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है कि कैपिटल गेन अगर इन केस ऑफ ये है कि भाई कैपिटल गेन अगर कोई एग्रीमेंट सपोज ये वाला छोड़ दो, यहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के केस में कंप्यूट करेंगे, ये सब हमें नहीं देखना है, ठीक है। हम कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन ही हम देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो नाउ वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन कंप्यूट करना बहुत सिंपल है कि भाई जो असेट मैं बेचता हूँ, एक सिंपल पहले समझ लेते हैं कि जो असेट हम जितने रुपये में बेचते हैं और वो बेचने के बाद जो पैसा आता है उसको हम कहेंगे कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन। ओके, सपोज मैंने कोई एक घर परचेज किया था 25 लाख में और वो घर मैं आज बेच रहा हूँ 35 लाख में, तो 35 लाख में मैंने घर को बेचा तो 35 लाख इज व्हाट, इट इज माय सेल कंसिडरेशन। तो ये मेरा सेल कंसिडरेशन हुआ। ओके, अभी ये घर को बेचने के लिए सपोज मैंने 25 लाख में घर खरीदा था, ठीक है, और उसको मैं बेच रहा हूँ 35 लाख में, तो 35 लाख में बेच रहा हूँ तो वो कंसिडरेशन मैंने इतने रुपये में असेट को बेची। अभी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है कि ये 35 लाख में बेचा, उसको बेचने के लिए समझ लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जो होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करने का कुछ खर्चा होता है,
वो समझ लो 1 लाख रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। फिर वो 25 लाख में मैंने घर खरीदा था, उसके बाद मैंने 2 लाख रुपये का खर्चा किया था, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सपोज 2 लाख का वो खर्चा किया था, और एक्चुअली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो असेट की कितनी थी, कितने में परचेस किया था, 25 लाख में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 25 लाख, मतलब टोटल घर के पीछे मैंने कितना खर्चा किया था, 25 लाख में घर लिया, 2 लाख का उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा किया और बेचने के लिए 1 लाख किया, टोटल 28 लाख रुपीज मैंने एक्सपेंस किया तब। और उसके बाद ये घर मैं 35 लाख में बेच रहा हूँ, तो 35 माइनस 28 में करूंगा तो जो डिफरेंस आया 7 लाख। नाउ दिस 7 लाख इज व्हाट, दिस इज माय कैपिटल गेन। आई कांट से दैट वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट दिस इज द लॉजिक कि आपको कंसीडरेशन का जो अमाउंट है वो कंसीडरेशन के अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये 3 चीज आपको लेस करनी है, और ये लेस करने के बाद जो आएगा दैट इज योर capital gain. So this is a simple idea I have given you that how to compute the capital gain. Now let us refer it from the material. Okay, तो देखो आप क्या करोगे, वही जो आपको मैंने बताया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे, उसमें से एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस करोगे तो आपको नेट सेल कंसीडरेशन मिलेगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करोगे, तो फाइनली आपको जो फिगर मिलेगा दैट इज योर कैपिटल गेन। ओके, तो वही चीज जो मैंने बताई वो आपको मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेना है, उसमें से आपको क्या लेस करना है, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस करने हैं, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा आपका वो नेट सेल कंसीडरेशन कहा जाएगा। और देन आफ्टर उसके बाद उसमें से आपने कितने में असेट परचेस की, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें से लेस करोगे, और कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब असेट परचेस करने के बाद उसको रिपेयर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो है आपका, इसमें से ये 3 चीजें 1, 2 और 3, ये 3 लेस करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। देखो यहाँ ये इंडेक्सेशन की भी बात की गई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कब इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, what is indexation, how to compute the indexation, all this we will discuss. देखो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम लेते हैं। अभी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में क्या लेना है, तो यहाँ उसके लिए नोट दी गई है कि इफ कंसीडरेशन इज रिसीव्ड इन अ काइंड, ओके, अगर काइंड में कंसीडरेशन मिला है तो सपोज मैंने आपको घर बेचा, 2 लाख रुपये का घर मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए की एक गाड़ी दे रहे हो और 1 लाख रुपया कैश में दे रहे हो, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे कि जो भी चीज आपको काइंड में मिली है उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू और सी एडिक्वेसी एंड रिसिप्ट ऑफ द कंसीडरेशन इज इररिलेवेंट। मतलब कंसीडरेशन आपको मिला या नहीं मिला दैट इज इररिलेवेंट, आपने बेचा, सेल एग्रीमेंट हो गया, दैट इज इम्पोर्टेंट। एडिक्वेटली आपने कंसीडरेशन कैलकुलेट किया कि कंसीडरेशन एडिक्वेट है या नहीं, एडिक्वेट मतलब પૂરતું છે કે નહીં। સમજી લો કે આજના તારીખે કોઈ વસ્તુ કોઈ પ્રોડક્ટ છે કે ભાઈ આજે સમજી લો કે મારા પાસે સોનું છે, હવે મારે પૈસાની જરૂર છે, હવે આ સોનાની ચેન મેં 30,000 રૂપિયામાં પરચેસ કરી હતી, હવે એકચ્યુઅલી હું જ્વેલરી શોપમાં જઈ અને માર્કેટ વેલ્યુ પ્રમાણે વેચવા જાઉં તેના 60,000 રૂપિયા આવે એમ છે, પણ હું કોઈને બહુ તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર છે ને હું 40,000માં વેચી દઉં છું, એનો મતલબ whatever consideration I have received is not adequate. The actual market value of that particular product was rupees 60,000, but I have sold it for rupees 40,000 only. Still I have a gain of rupees 10,000. So that gain will be taxable. I cannot claim that consideration received by me is inadequate. Consideration आपने receive किया, वो consider whatever consideration you have received that you have to take. Suppose if you have taken the consideration in a kind, अगर consideration kind में मिला है, कोई मतलब चीज के बदले में चीज मिली, मतलब आपने कोई कैपिटल असेट बेची उसके बदले में दूसरा कुछ आपको मिला, यू हैव नॉट रिसीव्ड द कंसिडरेशन इन अ मॉनिटरी फॉर्म, तो वो केस में आपको जो भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। सपोज मैंने आपको मेरा घर बेचा और उसके बदले में आप मुझे एक गाड़ी देते हो, ओके, तो वो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो यू हैव टू टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो, और मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है, जितने पैसे में आपने प्रोडक्ट बेची वो लेना है, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं, गुड्स, कैपिटल असेट आपने जितने में बेची है वो लेना है,
और कैपिटल एसेट को बेचने के बाद अगर आपको कुछ कंसिडरेशन काइंड में मिलता है तो वॉट एवर अमाउंट यू रिसीव्ड इन अ काइंड उसकी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है, ठीक है। नाउ उसमें से आपको लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के रिलेटेड। अब कोई भी असेट आप कैपिटल असेट बेचते हो तो ऑब्वियसली कभी कभी ब्रोकर रहता है बीच में, कुछ कागजात भी करने पड़ते हैं। अगर लैंड और बिल्डिंग अगर आप बेचते हो तो स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी इमूवेबल असेट के केस में। और शेयर बेचते हो तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो सी वॉट एवर एक्सपेंस यू हैव इनकर्ड, अगर कोई असेट को बेचने के लिए केस भी चलता है उसके बाद असेट बिकती है, तो जो लिटिगेशन के एक्सपेंसेस की वो सब क्या है, द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ट्रांसफर। तो देखो brokerage, what is the expenses related to transfer? Suppose if you have paid any brokerage, suppose in order to transfer the asset if you have paid any stamp duty, suppose any litigation expenses, मतलब कोर्ट में केस चाले असेट ने बेचवा माटे, and for that if you have incurred any expense, though that is also required to be deducted as a expenses of transfer. But you should remember कि suppose if you have paid the STT, that is security transaction tax, पेड इज नॉट डिडक्टेबल। अगर आपने कोई असेट को बेचते टाइम पे अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, ओके, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस इन रिलेशन टू ट्रांसफर एंड इट इज नेवर अलाउड एज ए डिडक्शन। सो व्हाट इज अलाउड एज ए डिडक्शन, व्हेनेवर यू डिडक्टिंग एट दैट टाइम ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिटिगेशन एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन, बट एनी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड बाय यू, then that is not allowed as a deduction। अगर स्टॉक मार्केट में हम ऑनलाइन प्रोडक्ट मतलब शेयर बेचते हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ आपका जो भी सेल कंसिडरेशन है उसमें से आप ये एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर लेस करोगे, बाद में आपको जो भी अमाउंट मिलेगा दैट इज योर नेट सेल कंसिडरेशन, ओके। तो व्हाट इज द नेट सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज योर नेट सेल कंसिडरेशन। अभी इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने रुपये में आपने असेट परचेज की थी, वो असेट आपको लेस, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है, वो और लेस करना है। तो देखो यहाँ आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, फिर ये इंडेक्सेशन पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले हम सिंपल पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं फिर हम इंडेक्सेशन पे जाते हैं। तो एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कैपिटल असेट, ओके। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया है तो वो नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंस किया है दैट इज इंक्लूडेबल, ओके। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट पेड टू डिस्चार्ज द मोर्गेज इज इंक्लूडेबल। सपोज अगर आपने कोई असेट परचेस की, ओके, कैपिटल असेट परचेस की और उसके बाद कोई रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस किया है वो असेट के लिए, तो दैट इज नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। पर्टिकुलर असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं कहा जाएगा, ओके। हाँ, लेकिन देखो अगर आपने कोई असेट है उसको एक्वायर करने के लिए आपने लोन ली होगी और लोन में आपने वही असेट को मोर्गेज की है और मोर्गेज को डिस्चार्ज करने के लिए अगर कोई अमाउंट आपने पे किया है, ओके, तो કોઈ અસેટને તમે ગીરવે મૂકી છે ને એને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટેનો કોઈ ખર્ચો કર્યો છે, ઓકે, તો ધેટ અમાઉન્ટ ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્લુडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज मैंने कोई घर लिया, ठीक है, घर लेने के बाद घर के लिए लोन भी लिया और वो लोन जो लिया वो लोन के सामने मैंने क्या किया, वही घर को मोर्गेज किया, अभी मेरी वो लोन खत्म हो गई, नाउ आई हैव टू डिस्चार्ज, मतलब वो घर का मुझे टाइटल क्लियर करवाना पड़ेगा। तो सिर्फ जो भी मोर्गेज के पेपर्स है वो मुझे मतलब बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा और मोर्गेज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए मैंने कोई खर्चा किया है, इट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली। सो इफ यू हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंस टू डिस्चार्ज द मोर्गेज then it is treated as the part of the cost of acquisition and that is to be included. But suppose if you have incurred any routine kind of expense, okay, matlab if you have incurred the expense and which is capital in nature, then that is to be included, okay. If you have incurred the expense incurred in relation to the asset and that is to be included, but see any expense which is revenue in nature, it is not to be included, okay. Now see cost of improvement, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको उसमें से लेस करनी है और असेट को एक्वायर करने के बाद अगर आपने कोई एक्सपेंस आपने किए हैं, ओके, जो असेट को इम्प्रूव करता है, तो वो एक्सपेंसेस, सपोज घर लिया है
या फिर कोई मशीन आपने बिल्डिंग लिया है या फिर लैंड लिया और लैंड को इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपने उसमें उसका लेवलिंग करवाया और अगर उस पे मतलब दैट इज व्हाट, उस पे जो खड्डे थे वो पुरवा दिए, उस पे कुछ आपने ब्लॉक लगाए, पेवर ब्लॉक लगवाए, ये सब कैपिटल एक्सपेंस है। तो कैपिटल एक्सपेंस है तो कैपिटल एक्सपेंस आर टू बी इंक्लूडेड। लेकिन घर લીધું પછી घर पर कलर मारे તમે દર વર્ષે મારો છો આ વર્ષે મારો, so that is not, that is a revenue expense, so that is not to be included. Okay, तो revenue nature का जो routine expense है that is not to be included, but जो capital nature का expense है that is to be included. Okay, तो देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी असेट है उसके रिलेशन में आपने कैपिटल असेट परचेस की, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने किया, तो दैट इज टू बी इंक्लूडेड। ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस। तो रेवेन्यू नेचर का कोई भी एक्सपेंस, रूटीन नेचर का एक्सपेंस दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके, नाउ सी कौन से साल में आपने खर्चा किया है दैट इज नॉट रिलेवेंट। ओके, इफ द और जो भी है, अगर इफ देखो यहाँ पे लिखा है इफ द कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इंडेक्सेशन मिलेगा, ऐसा लिखा है। मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। नाउ अभी इंडेक्सेशन क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे कॉम्प्यूट करते हैं, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में क्या करते हैं कि हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। ओके, फुल वैल्यू मतलब कितने में असेट बेची, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर मतलब जो हुआ वो लेस करके, उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो जो हम लेस करते हैं कौन से वाले केस में, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट व्हेनेवर वी कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, और अब हमारा असेट का टाइप क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट किसको कहते हैं, 36 मंथ से ज्यादा, 12 मंथ से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा, वो आपको मैंने बताया। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो वो केस में हमें क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर तो हमें जो वो लेस करनी है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमें डायरेक्ट लेस नहीं करनी है, हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये लेस करना है। मतलब इंडेक्सेशन, ये दोनों में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा, और वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलता है, ओनली इफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एंड व्हाट एवर गेन यू आर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी इंडेक्सेशन क्या है, देखो इंडेक्सेशन इज नथिंग, आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो कि टू फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आज समझ लो ऐसा हो कि भाई मारा पप्पाए कोई घर આજથી 50 વર્ષ પહેલા 2 લાખ રૂપિયામાં પરચેસ કર્યું છે, હવે એ ઘરની કિંમત આજે 2 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે। ઓકે, તો સપોઝ if I directly take that this is the cost, full value of consideration, full value of consideration suppose मैं लेता हूँ full value of consideration I am taking 2 crore rupees। ओके, और उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डायरेक्ट 2 लाख लेस कर दूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये 2 लाख में अगर लेस करता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट विल बी माय गेन विल बी 1 करोड़ 98 लाख। ओके, सो दिस इज टू मच। 1 करोड़ 98 लाख रुपया कैपिटल गेन છે ને આના પરથી હું 30% टैक्स भरूं तो મારા હાથમાં શું રહેશે, કઈ नहीं रहे। ओके, मतलब देखो जो आज से 50 साल पहले के 2 लाख हैं उसको आज के 2 करोड़ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, टू डिटरमाइन दी गेन, तो आपको क्या करना है, ये 2 लाख को आज की वैल्यू में लाना पड़ेगा। ओके, आज की वैल्यू में मतलब आज के दिन उसकी क्या वैल्यू होती है वो आप देखो। ओके, सपोज मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई करके देखा, इंडेक्सेशन की फॉर्मूला लगाई और उसके बाद ये घर की कीमत आ रही है समझ लो 1 करोड़ 50 लाख। इंडेक्स मतलब यही 2 लाख मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई किया। इंडेक्सेशन मतलब 25 વર્ષ પહેલા જે 2 લાખ રૂપિયા હતા એની આજના દિવસે શું કિંમત થાય, તો તે દિવસની હું કિંમત શોધું છું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ एक्विजिशन। लेकिन इंडेक्सेशन एप्लीकेबल कब होगा, दिस इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो ये केस में देखो अभी मुझे 1,98,000 1 करोड़ 98 लाख पे टैक्स नहीं पे करना है,
लेकिन ये 2 करोड़ और 1 करोड़ 50 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 50 लाख। ये 50 लाख पे ही टैक्स पे करना। ओके, सो गवर्नमेंट ऑल्सो नॉट चार्जिंग ए टैक्स फ्रॉम यू इन दैट वे। गवर्नमेंट इज गिविंग यू बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। कि भाई इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आपको आपकी जो पास्ट की जो वैल्यू उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। देखो प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट राइट वर्ड, बट सी यू आर ब्रिंगिंग दैट असेट्स वैल्यू ફોર ધીસ યર વેલ્યુ, મતલબ उसको इंडेक्स मतलब અત્યાર સુધી જે ભાવમાં વધારા થયા છે બધી વસ્તુઓના, ઓકે, तो जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंसीडर करके हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम डिसाइड करते हैं। देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखो यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही यहाँ पे ये नहीं दिया लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन, ओके। और आपको एग्जाम में अगर पूछता हूँ मैं इंडेक्सेशन के बाद वैल्यू डिटरमाइन करने की, तो आपको वैल्यू दी होगी, बट हम एक कैलकुलेट करके भी देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। इंडेक्स क्या, देखो इंडेक्सेशन कहाँ कंसीडर करना है, देखो इंडेक्सेशन इफ द कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, कहाँ लेना है, इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों जगह पे इंडेक्सेशन लगा के आपको वैल्यू लेनी है। कब, व्हेन दी देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ओके। सपोज शॉर्ट टर्म है तो आपको सीधा कैलकुलेशन ऐसे ही कर देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेनी है, ओके। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप कैसे कंप्यूट करोगे, देखो इंडेक्सेशन ऐसे कंप्यूट होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या तो फिर आपका जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओके। हम पहले इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए देखते हैं। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम करंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे, ओके। देन CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको बोलते हैं, CII इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, केम छो, बस मजाમાં સર, તબિયત બરાબર છે ને? हाँ ना, बोलो ना सर, बोलो बोलो, वांधो नहीं। हाँ हाँ, ઓકે ઓકે, કોનામાંથી ટ્રાન્સફર કરવાના છે, કોનામાંથી ટ્રાન્સફર કરવાના તમારા? हाँ तो 20 ટ્રાન્સફર આપી દઈશું સર, વાંધો નથી। મને ખાલી એક મેલ કરાવી દેજો ને સર, આખું નામ ને એનું એડ્રેસ, નામ અને એડ્રેસ કરી દેજો, એટલે હું તમને પેલું જે હરેશભાઈ લખી રહ્યા છે ને શેર લખેલા છે ને, એને હું કાલે મારી રીતના સારા અક્ષરે લખી દઉં છું અને એમાં આ બેનનું ટ્રાન્સફર હું કન્સિડર કરી દઉં છું। ઓકે સર, શેર ટ્રાન્સફર મને ડિટેલ મોકલી આપો, હું કરી દઉં છું। ઓકે, એપ્રિલમાં આવ્યા છે ને, એટલે આ વર્ષમાં આપણે 31 માર્ચ 2021ની બેલેન્સ શીટમાં એ રિફ્લેક્ટ નહીં થાય, આપણી 22ની બેલેન્સ શીટમાં રિફ્લેક્ટ થશે, બરાબર? પણ એક મેલ કરાવી દીધો ને સર મને નામ ને એડ્રેસ, તો હું એ પ્રમાણે કરી દઉં છું। हाँ व्हाट्सअप कर दो सर, चालશે सर, आ नंबर पर करजो आगे सर। हाँ सर, ओके, सॉरी। सो सी, इंडेक्सेशन क्या करते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। कौन से ईयर में असेसी ने पहली बार इंडेक्स असेट एक्वायर की, वो साल की CII आप अब लो, और सी उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ओके। पहले ये समझते हैं, बाकी ये और वाला हम बाद में समझते हैं, ठीक है। देखो मेरे मटेरियल में CII नहीं दिया है, लेकिन हम देखते हैं। देखो ये हमारा लेटेस्ट टेबल है, ओके। दिस इज दी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अभी हम समझ लो कि ये हर एक साल की, देखो ये इसका बेस ईयर है ना, 2001-2 दिया, 2001-2 को उन्होंने 100 नंबर दिया, और हर साल देखो कुछ ना कुछ नया हर साल का। देखो 2021 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, 301, और 2001-2 को बेस ईयर लिया है, उसका 100 है, ठीक है। अभी समझ लो कोई असेट मैंने 2006-7 में परचेज की थी, कौन से साल में परचेज की थी, 2006-7 में, ठीक है।
और वो असेट मैं बेच रहा हूँ 2019-20 में, ओके 2019-20 में बेच रहा हूँ, तो उसका मेरे को अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकूंगा? देखो, मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ ट्रांसफर के CII से, और उसको डिवाइड कौन से ईयर से करना है? द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड बाय असेसी। ओके, तो यहाँ आप समझ लो कि मैंने एक असेट परचेज की थी 5 लाख रुपए में इन द ईयर 2006-7। ओके, 2006-7 में मैंने कोई असेट एक्वायर की थी कितने रुपए में? ₹5 लाख में। 5 लाख रुपए में मैंने एक असेट परचेज की। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अभी मुझे क्या करना है? जैसे आई नीड टू सपोज आई एम सेलिंग दिस असेट, फॉर ₹10 लाख। ये असेट में 10 लाख रुपये में रहा हूं। ये असेट को मैं बेच कितने में रहा हूं? 10 लाख रुपए में। कौन से ईयर में? इन दी प्रीवियस ईयर 2019-20। तो 19-20 में उसको 10 लाख रुपए में मैं बेच रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ लॉन्ग टर्म 36 मंथ से ज्यादा पीरियड हो गया कि 5-6 माह असेट। कौन सा ईयर मैंने बताया? 2005-6 समझ लो। 5-6 में मैंने ये असेट परचेज की थी। ये असेट कौन से साल में परचेज की? 2005-6 में। 2005-2006 ये प्रीवियस ईयर में मैंने ये असेट को एक्वायर किया था। ओके, कितने में एक्वायर किया था? आई हैव एक्वायर्ड दैट असेट इन द ईयर 5-6 में मैंने एक्वायर किया था ₹5 लाख में। ओके, 5 लाख रुपए में असेट मैंने एक्वायर की थी। ये करंट ईयर में मैं उसको 10 लाख में बेच रहा हूँ। मतलब मेरा पीरियड 36 मंथ। देखो, यू कैन सी हियर कि 5-6 से 19-20 के बीच का पीरियड 36 मंथ से ज्यादा हो जाता है। ओके, तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कॉम्प्यूट करूंगा? 5 लाख, और ये 5 लाख को मैं क्या करूंगा? देखो, दिस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो इंडेक्सेशन का है वो मैं गिनूंगा। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर, देखो मेरा 19-20 में असेट बेच रहा हूँ, तो 19-20 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? तो 289। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 289 से। ठीक है, और हम डिवाइड करेंगे ईयर ऑफ एक्विजिशन का जो होता है उससे। ओके, तो यार मैंने इसको एक्वायर कितने में किया था? एक्वायर कौन से ईयर में किया था? तो 5-6 में। तो 5-6 का 2005-6 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? तो 117। तो 117 से मैं ये फिगर को डिवाइड करूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी आंसर आया हमारा, सॉरी ऐसा हुआ, ऐसा करना है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस, डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं रखनी। है કેટલા જે કઈ ફિગર આવે છે 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 117। चलो हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। इसका लिमिट आ जाता है लगता है। सर 12,35,042 rupees. क्या फिगर आ रही है बेटा? 25,042. ये करते हैं तो 12 लाख 35,042 42. 42. 174. 0.70। 1.7. मतलब देखो एज ऑन डेट, मतलब 5 लाख 2005-6 में जो असेट एक्वायर की थी
उसकी एज ऑन डेट वैल्यू कितनी आती है 12 लाख। और इसको मैं अगर आप पहले देखो इंडेक्सेशन नहीं अप्लाई करते तो क्या होता कि भाई 10 लाख में असेट वेची खरीदी थी કેટલામાં તો કે 5 લાખમાં, આનો ડિફરન્સ તમે કાઢી નાખત તમે શું કરત કે ભાઈ 5 लाख रुपया प्रॉफिट થયો, 5 लाख रुपया गेन થયો। लेकिन यहाँ ये केस में क्या होगा, देयर विल बी अ लॉस। कहेंगे આજના દિવસે અસેટની કિંમત કેટલી છે તો કે 12 લાખ રૂપિયા, ખરેખર તમે વેચી કેટલામાં તો કે 10 લાખ રૂપિયા। तो सी there will be a capital loss of 2,35,000। Are you getting what I try to convey? कि ये जो अमाउंट है ऐसा करते हैं तो हायर अमाउंट ही आएगा। और ये मतलब देखो तो यहाँ मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई 12 लाख। मतलब आ असेटनी हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख नहीं लो, पण आ असेटनी हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लईश हूँ 12 लाख। तो 12,35,000 जो भी आ रहा है फिगर, ये फिगर मैंने लिया। मतलब ये असेट की कीमत कितनी इतनी आज के दिन, और इसको मैंने आज के दिन ही कितने में बेचा 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द कैपिटल गेन देयर विल बी अ लॉस टू मी। यहाँ मुझे 2,35,042,042 का मुझे लॉस होगा। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिडक्टिंग द फिगर फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन में से आपको डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो उसका ये जो देखो आपको एग्जाम में अगर कैलकुलेट करने का आया तो आपको ये इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल का आपको दिया होगा इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स विल बी गिवन टू यू। तो अगर आपको कैपिटल गेन का छोटा सा सम आता है कि भाई सेल कंसिडरेशन इतना है, इतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इतना दिस इज द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये जो इंडेक्सेशन है वो एग्जाम में दिया होगा, तो आपको ये टेबल में यहाँ, और ऐसा होगा तो आई विल शेयर दिस टेबल विथ यू इन दी वर्ड फाइल। तो ये आपको अगर जनरली क्या होता था कि हम जब फिजिकल एग्जाम होती तो ये टेबल हम पेपर के पीछे ही पूरा छप के दे देते थे कि तो जिसको भी कैपिटल का इनका सम कैलकुलेट करना है बड़ा सम तो वो देख लेते थे। अभी ये यहाँ ये टेबल देना पॉसिबल नहीं एग्जाम में। तो जो भी ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ पर एक्विजिशन का आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया होगा, लेकिन कैसे कॉम्प्यूट करते हैं वो समझ में आया आपको। समझ लो आज असेट में 15 लाख में वेची हो, આપણે તો અહીંયા लॉस से 15 लाख में वेची हो, तो देखो 5 લાખની અસેટ હતી, મેં ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ગણી એટલે મારી ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 12 લાખ થઈ ને અસેટ હું 15 લાખ में વેચું છું तो અહીંયા મને गेन કેટલો થયો कि देयर विल बी अ 3 लाख समथिंग गेन होगा मेरे को, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इंडेक्स नसेशन नहीं अप्लाई किया होता तो क्या होता, 15 लाख माइनस 5 लाख में करता तो 10 लाख का गेन होता। सो अल्टीमेटली टू गिव द बेनिफिट टू दी असेसी कि वो उसको ज्यादा कैपिटल गेन ना भरना पड़े, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है एंड इन दिस वे द कैपिटल गेन कैन बी कॉम्प्यूटेड। लेकिन आप समझ लो अगर आपका ईयर ऑफ एक्विजिशन, अगर ईयर ऑफ एक्विजिशन जो है वो 2001-2 से पहले का है तो मैंने आपको बताया कि 1-2 से ही इंडेक्सेशन का बेस ईयर चालू हुआ। लेकिन सपोज मैंने असेट परचेस की थी 1998 में मैंने असेट परचेस की थी, तो उसका तो मुझे कहाँ से इंडेक्सेशन का सीआईआई कहाँ से लाऊंगा मैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो શું કરવાનું કે 2001 કે 2 પહેલા સપોઝ કોઈ પણ અસેટ તમે પરચેસ કરી આના કરતા ઉપરના વર્ષોમાં, તો એ બધા વર્ષોમાં આપણે ઇન્ડેક્સ કયા વર્ષની લઈ લેવાની 1-2 ની। ओके, so suppose यहाँ तक परचेस किया है इट्स ओके, बट सपोज 2001-2 से पहले आपने असेट परचेस की है, in that case what you have to do, you have to take the cost of inflation index of the 2001-2। so you can see here you have to take the cost of inflation index of the previous year in which the asset is held by the assessee or the CI of 2001-2 whichever is later। मतलब તમારું year of purchase સમજી લો 2001-2 પછી છે तो તમે 2001 પછીનો જે વર્ષ છે સપોઝ 2005-6 है तो 5-6 का आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लोगे। लेकिन मेरा 1990 में मैंने असेट परचेस किया तो मैं क्या करूंगा 2001-2 का जो 100 वाला इंडेक्स है वो मैं ले लूंगा। ओके, और देखो अगर CII of the previous year of the cost of acquisition of owner, ओके, मतलब कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रीवियस ओनर है उसने एक्चुअली कब असेट एक्वायर की थी उसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेना पड़ता है। देयर आर फ्यू सिलेक्टेड केसेस व्हेन इट इज एप्लीकेबल, सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 दैट इज
व्हेन यू आर सपोज टू देखो आपको कुछ केस में क्या होता है कि कुछ असेट आपको गिफ्ट में मिलती है, कि विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है। तो वो केस के अंदर क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज समझ लो कि एक ऐसा है कि मेरे फादर ने कोई असेट 1998 में, माय फादर हैज एक्वायर्ड वन असेट इन द ईयर 1998, ठीक है, फॉर ₹5 लाख, 5 लाख में उन्होंने असेट परचेज की इन द ईयर 1998-1999। ओके, 1998-99 वाला फाइनेंशियल ईयर में મારા ફાધરે 5 लाख रुपए में एक असेट परचेज करी। ओके, नाउ वो असेट उन्होंने मुझे 2005-6 में मुझे विल में दे दी, गिफ्ट में दे दी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे विल या गिफ्ट में दे दी असेट। अभी ये असेट को मैं 2019-20 में बेच रहा हूँ। देखो, तो ये असेट मैंने तो एक्वायर नहीं की है, एक्वायर किसने की थी? मेरे फादर ने, लेकिन मेरे को तो मुफ्त में मिली है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जीरो लूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको व्हील और इनहेरिटेंस में असेट मिलती है तो आपके प्रीवियस ओनर को कितनी कॉस्ट हुई थी वो लेनी है, और आपको वो इंडेक्सेशन भी कब का बेनिफिट भी कब से मिलेगा? फ्रॉम द डे ऑन विच योर प्रीवियस ओनर हैज एक्वायर्ड दिस असेट। प्रीवियस ओनर ने जब असेट एक्वायर किए तब से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो, और उसका कॉस्ट भी आपको कब, कौन सा वाले लेना है? आपके फादर ने कितने में परचेज की थी? नहीं तो અહીંયા શું થઈ જાય, તમને પૂરેપૂરો કેપિટલ કે તમને તો તમારા ફાધરે મફતમાં જ આપી દીધું। હવે અત્યારે તમે આ સેટ 2 કરોડમાં વેચો તો 2 करोड़ रुपया कैपिटल गेन? नो, पूरा टोक, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है, आपको आपके फादर ने गिफ्ट में दी है। तो जब भी गिफ्ट में दी होगी तब भी टैक्सेबल नहीं होगा गिफ्ट में, क्योंकि फादर ने दी है। और आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है आपको, मतलब व्हील और इनहेरिटेंस में आपको कुछ भी मिलता है, इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, और मतलब गिफ्ट में भी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। फिर अभी आप बेच रहे हो तो ये 5 लाख आपके फादर को जो कॉस्ट हुई है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपके फादर ने 1998 में परचेज किया था, तो 1998 का आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि 5 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे प्रीवियस ओनर की, और उसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से, बिकॉज देखो 2001-2 से पहले परचेज किया है, तो हम क्या करेंगे, 2001-2 का हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे 100, और देखो ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो है 289, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो समटाइम्स यू आर सपोज टू टेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर आल्सो। ओके, ऑफ हेलो, एनी क्वेश्चन? Okay, so shall I continue? So CII of the previous year of the, yes. Sir, if we purchase the asset in 1992 and we sell that asset in 2000, so sir, which index we want to take? Suppose yes, अगर जो ये આપણો પ્રશ્ન જ નથી બેટા કે 1998-99 માં એને પરચેસ કરી અને 2000 માં વેચી દે છે કે 2001 માં વેચી દે છે, બરાબર? આપણું પ્રીવિયસ યર કયું છે? એ જે તે વર્ષ ये वर्ष में टैक्सेबल થઈ ગયું બેટા, समझ? और उस टाइम पे वो पुराना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस टाइम पे अलग था। ओके, जिसमें हम 1981 को बेस ईयर बनाते थे। जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम तो 1981 वाज द बेस ईयर। ओके, अब ये 2001-2 वाला जो आया, मतलब ये 2001-2 में अपने असेट ट्रांसफर की है, तो दिस इज द कैपिटल गेन ऑफ द ईयर ऑफ 2001-2। और 1-2 में उस टाइम पे क्या था, 1981 का बेस, मतलब वो 1998-1999 का जब था तब पहले उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ था, वो एप्लीकेबल होता है। 1-2 के बाद नया कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, मतलब 1-2 को बेस ईयर बना के फिर नया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आया। ओके, तो वो साल का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी असेट है वो 2001-2 में टैक्सेबल हो गई है। ये साल हम पढ़ रहे हैं 1920 के लिए और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ठीक है। तो वो साल में पुराना इंडेक्सेशन एप्लीकेबल था और उस हिसाब से वो टैक्स लगेगा। ओके, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू, यस। तो सी, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स of the previous owner is also taken
ओके, तो देखो अगर प्रीवियस ओनर ने, मैंने आपको बताया ये गिफ्ट वाला केस है, तो वो केस में प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेनी पड़ेगी। ओके, देखो नया इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2012 से मिल रहा है, और 12 क्या है, 12 इज योर बेस ईयर। ओके, नाउ सी Sujat receive, just a minute beta. Sujat. सॉरी। ओके, तो देखो आपका जो क्वेश्चन था उसका ही आंसर है कि अगर असेट आपने 12 से पहले अगर एक्वायर किए तो क्या करना है, तो सिंस द इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम 2012, so we have to fill up the gap, okay, earlier period, thus we will not lose the indexation period। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो see if the asset is acquired, देखो before 1/4/2001, then assessee have an option। देखो assessee को पास ऑप्शन है कि अगर वो बोलता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट, मुझे इंडेक्सेशन में नहीं जाना है, तो assessee has the option to take the fair market value of the asset as on 1/4/2001 और cost of inflation index। मतलब 2012 को 2000, उसके पास दो ऑप्शन है। ओके, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी वो ले सकता है, और वो 2001 की कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई असेट 1998 में परचेज हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1998 में 5 लाख थी। तो मैंने क्या बताया, अगर ये असेट अगर आप बेच रहे हो तो आप क्या करो, अगर आपको इंडेक्स एक तो लॉजिक बहुत ચોખ્ખું છે, તમે આ 5 લાખ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન છે એને 2012 ની ઇન્ડેક્સ થી તમે ડિવાઈડ કરો અને મલ્ટીપ્લાય કરો યર ઓફ ટ્રાન્સફર ની 289 થી, ठीक है। बट सपोज ये बोलता है कि ये 1998 से लेके 2012 तक का मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, आप 2001 के दिन की मार्केट वैल्यू लेके आओ। अगर ये 2001 के दिन की मार्केट वैल्यू लेके आता है, वही 60 लाख रुपया 2001 की मार्केट वैल्यू है, तो आप यहाँ 5 लाख की जगह 2001 की मार्केट वैल्यू ले सकते हो। यू हैव अ ऑप्शन, तो आइदर ओके, आइदर यू कैन टेक दिस एंड देन यू कैन गो फॉर इंडेक्सेशन, और अगर आपको ये नहीं जा करना है तो आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू करवाने जाओगे तो आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से लाना पड़ेगा, ठीक है, और वैल्यूअर का सर्टिफिकेट लेगा। अगर ये झंझट में नहीं पड़ना है तो आपके पास इसका तो डॉक्यूमेंट होगा कि 5 लाख में परचेस करी थी तो 5 लाख लगे। तो आइदर यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक द फेयर मार्केट वैल्यू दिस, बट स्टिल द इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल। ओके, नाउ सी, लेकिन ये ऑप्शन देखो कहाँ नहीं मिलता है, डेप्रिसिएबल असेट के केस में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएबल असेट के केस में, और आपको पता है कि डेप्रिसिएबल असेट पे जो भी कैपिटल गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, कभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि सेल कंसिडरेशन माइनस आप क्या करोगे,
WDV ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, जो भी एसेट की क्लोजिंग WDV होगी वही आपका, मतलब वहां डेप्रिसिएबल एसेट के केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हमने कैपिटल गेन सॉरी PGBP में पढ़ा है कि अगर कभी भी लॉन्ग टर्म सॉरी डेप्रिसिएबल एसेट है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, तो देखो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। और गुडविल और यानी ऐसी कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, ये दो के केस में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, और ऐसा करके क्या होगा, मतलब अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो कि आप 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेके फिर इंडेक्सेशन अप्लाई करोगे, तो आपका जो इंडेक्सेशन का जो लॉस होगा दैट गैप विल बी फिल्ड अप। सेम वे देखो, ये हमने देखा इंडेक्सेशन इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है, ओके, आपको मैंने ये बताया कि जब भी हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम पे दो चीज देखो, फेयर मार्क जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, कौन से केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। और दूसरा हम क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है असेट को इंप्रूव करवाने के लिए कोई खर्चा किया है तो उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब, तो देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कंडीशंस है दैट वी आर सपोज टू चेक। यू सी, इफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओके, if considered only if it is incurred on or after 1/4/2001, मतलब તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નો ખર્ચો 1/4/2001 પછી, if you have incurred the expense on or after 1/4/2001, then and then the cost of improvement is to be considered. Okay, or see, cost of improvement incurred by the previous owner, that is also to be considered, but what is the condition कि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को का ही बेनिफिट आपको तभी मिलेगा व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इनकर्ड आफ्टर 1/4/2001। अगर आपका प्रीवियस ओनर ने भी किया लेकिन उसने आपके 1/4/2001 के बाद किया है, देन इट इज अवेलेबल। ओके, नाउ सी, अगर गुडविल का केस है, बिजनेस का गुडविल है, ओके, और उसमें आपने इंप्रूवमेंट के लिए कोई खर्चा किया है कि धंधानी शाख बढ़ावा માટે मैं आटू एडवर्टाइजमेंट કર્યું, આવી રીતના બ્રાન્ડિંગ કર્યું, तो उसके लिए कोई भी खर्चा किया है गुडविल के केस में, तो गुडविल में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में अगर आपने भी खर्चा किया है तो भी बेनिफिट मिलेगा, आपके प्रीवियस ओनर ने किया है तो भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंस ऑन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ओनली आफ्टर 1/4/2001, then and then the cost of improvement is to be considered. If the cost of improvement is incurred prior to that, for that no benefit of indexation is available. Okay, indexation का benefit नहीं मिलेगा आपको। हाँ, उसमें आप cost of improvement का आपके पास proof है, normal cost of improvement ले सकते हो यहाँ, ठीक है। But see, आप indexation वाला benefit लेना है तो वो कब ले सकते हो कि if you have incurred the cost of improvement after 1/4/2001, that you can take. ओके, वही सेम तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कैलकुलेट करना है कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको डिवाइड करना है कि कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया, वो मल्टीप्लाई भी ईयर ऑफ ट्रांसफर का भी जो कॉस्ट ऑफ सॉरी CII ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द इंप्रूवमेंट, जो प्रीवियस ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, CII ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर आपका हमेशा यही रहेगा 289, और सिर्फ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट आपको ले लेना है। सपोज 7/8 में इंप्रूवमेंट किया तो 7/8 के की CII से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कौन से ईयर की करना है, 289 से, कि आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, ठीक है। नाउ देखो, देयर आर फ्यू असेट, कुछ असेट्स ऐसी है जिसमें इंडेक्सेशन भले लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में आपको हमेशा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट देयर आर फ्यू असेट्स इन विच द यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी कौन सी असेट के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स है भले लॉन्ग टर्म है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में तो क्या है कि 12 महीने से ऊपर ही हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो जीरो कूपन बॉन्ड होता है। डिबेंचर और बॉन्ड होते हैं, ओके, वेदर इट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, ओके। लेकिन देखो, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड,
ये जो दो असेट्स हैं उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर आप स्लम्प सेल करते हो। ओके, अंडर सेक्शन 50B। ओके, स्लम्प सेल मतलब समझ लो कि आप आपका कोई एक पर्टिकुलर यूनिट बिजनेस का बेच रहे हो। ओके, तो दैट इज द स्लम्प सेल। तो स्लम्प सेल आप करते हो तो स्लम्प सेल के केस में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, डेप्रिसिएबल असेट है कि डेप्रिसिएबल पे तो लॉजिक यही है कि कैपिटल गेन अराइज ऑन द डेप्रिसिएबल असेट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, कैपिटल गेन। So in case of depreciable asset, the benefit of the indexation is not available. Same way, shares or debenture acquired by the non-resident in the foreign currency in Indian company। देखो इंडियन कंपनी में नॉन रेसिडेंट ने अगर कोई शेयर्स फॉरेन करेंसी पे करके दिए हैं तो उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और देखो सेक्शन 112 में कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट स्पेसिफाई की गई है। ओके, तो वो सेक्शन 112 की जो हम देखेंगे आगे 112। ओके, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हैं उसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जो असेट है भले वो लॉन्ग टर्म रही लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन सी असेट के केस में नहीं मिलेगा? जीरो कूपन बॉन्ड पे नहीं मिलेगा, डिबेंचर पे नहीं मिलेगा। हाँ, दो डिबेंचर ऐसे है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द आरबीआई। इन दैट केस यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन। स्लम्प सेल करते हो, हम आगे देखेंगे स्लम्प सेल भी किसको कहते हैं। डेप्रिसिएबल असेट है तो डेप्रिसिएबल असेट के केस में नहीं मिलेगा। और शेयर और डिबेंचर के केस में मिलता है, लेकिन शेयर और डिबेंचर कैसे है? तो शेयर और डिबेंचर देखो देखो डिबेंचर के केस में तो मिलता ही नहीं है। देखो यहाँ पे ही निकल गया, डिबेंचर के केस में किसी को नहीं मिलता बेनिफिट। ठीक है, फिर भी यहाँ लिखा है डिबेंचर अगर कोई नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो सेल कर रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। और सेक्शन 112 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बताई गई है वो कैपिटल असेट में देखो सेक्शन 112 एक बार गूगल कर लेते हैं कौन कौन सी असेट है तो आपको पता चले। सेक्शन 112 इनकम टैक्स, तो ये है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कुछ नहीं है। The capital can arise on transfer of the long-term capital asset other than unlisted securities or shares not being a company in which the public are substantially interested. Okay, shall be taxable at the rate of 20। मतलब देखो यहाँ पे 112 में कौन सी असेट दी गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ओके, long-term capital asset other than unlisted securities or shares not being a company in which the public is substantially interested। okay, so see just a minute। ये पूरा बहुत बड़ा लिस्ट है। ओके, जनरली सिक्योरिटीज आती है यहाँ पे। तो 112 वाले सेक्शन में जो भी असेट्स दी गई है वो असेट को भी लॉन्ग टर्म मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी देखो ये दूसरा एक सेक्शन है, हमने अदर सोर्सेस में भी पढ़ा था कि ट्रीटमेंट ऑफ द एडवांस मनी फोरफिटेड। ओके, सेक्शन 51 कि देखो फोरफिटेड बिफोर 1/4/2014 and reduced from the original cost of acquisition before the indexation। okay, now see अभी 1/4/2014 के बाद तो क्या है कि अगर फोरफिटेड मनी है तो सेक्शन 56 में टैक्सेबल है। तो करंट ईयर के लिए तो देखो आपको मैंने अदर सोर्सेस वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो ये पढ़ाया था कि मैं किसी को असेट बेच रहा हूँ, ये अदर सोर्सेस वाला चैप्टर। ठीक है, अदर सोर्सेस वाले चैप्टर में मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था सेक्शन 56। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई
यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, एडवांस मनी फोरफिटेड। देखो अदर सोर्सेज में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई किसी को आप असेट बेच रहे हो, सब समझी रहे, कोई नहीं तो आ एग्जांपल में તમને આપે તો સપોઝ હું મારું ઘર કોઈને વેચી રહ્યો છું, आई एम सेलिंग माय हाउस टू समवन, ठीक है। तो कोई ग्राहक आता है कि भाई हेमंत भाई मारे घर लेવું છે, એટલે હું કહું કે લાવો ભાઈ 5 લાખ રૂપિયા બહાનું આપો, તો ધીસ ઇઝ વોટ એડવાન્સ મની। તો 5 લાખ રૂપિયા આપી ગયો, પછી બીજા દિવસ બીજો ગ્રાહક આવ્યો, हेमंत भाई હું તમારી પાસેથી આ ઘર ખરીદવા માંગુ છું। એવું કહીશ ભાઈ ના મારે નથી વેચવાનું કારણ કે આ પેલો બહાનું આપી ગયો છે। પછી બીજા દિવસ જે બહાનું આપી ગયો તો એ ભાઈ કહે કે ભાઈ હેમંતભાઈ હવે મારે ઘર નથી લેવું, તો હું શું કરીશ, એને જે બહાનું આપ્યું છે ને 5 લાખ રૂપિયાને હું શું કરીશ, ફોરફિટ કરી દઈશ। तो हम जो भी एडवांस देते हैं कि लो आटलू बहानू आप्યું, इफ यू डू नॉट परचेज द असेट देन इट इज गेट फॉरफिटेड। अभी वो फॉरफिट किया हुआ पैसा है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो 2014 के बाद अगर कोई भी ऐसा फॉरफिट किया हुआ मनी आप ले लेते हो, कोई भी असेट को बेचने के लिए किसी से एडवांस मनी लेते हो, फिर वो सामने वाला असेट नहीं बाय करता आपसे, तो आप पैसे फॉरफिट कर लेते हो। तो जो भी आपने फॉरफिट किया हुआ अमाउंट है, तो अभी क्या है, इट इज टैक्सेबल। तो अभी पहले की सिचुएशन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि आफ्टर 1/4/2014 આપણે તો 19-20 ની વાત કરીએ છીએ, तो 1920 में तो क्या होगा, इफ एनी एडवांस मनी इज फॉरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट, तो कोई भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से पहले अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। देखो पहले क्या होती थी वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो क्या है, 1/4/2014 से पहले आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से बिफोर इंडेक्सेशन उसको लेस कर देने का। તમે 50 લાખ રૂપિયાની અસેટ પરચેસ કરી હતી સમજો, ને એને એકવાર વેચવા કાઢી, અને વેચવા કાઢીને એક વખત કોઈ મને 5 લાખ એડવાન્સ આપીને એને જપ્ત કરી લીધું, એડવાન્સ મારી પાસે આવી ગયું, એનો મતલબ શું, 5 હવે મારી અસેટ કેટલાની થઈ ગઈ, 50 લાખની હતી પણ મને 5 લાખ એમાંથી મળી ગયા। હવે અસેટની વેલ્યુ મારે 45 લાખ રૂપિયા લેવો ને એના પર કોસ્ટ ઓફ ઇન્ડેક્સેશન એપ્લિકેબલ થશે। એવું 2014 પહેલા થતું હતું, બટ આફ્ટર 2014 that provision has changed, and after 1/4/2014 if any amount is or advance money is forfeited by you, then it is taxable under section 52 under the head income from other sources. Okay, or suppose if any advance money is forfeited by your previous owner, तो previous suppose મારા પપ્પાએ ઘર લીધું ને એકવાર વેચવા કાઢ્યું અને એમને કોઈની પાસેથી બહાનું લીધું પછી ના વેચાયું ને પૈસા જપ્ત કરી દીધા, પછી એમને घर વેચ્યું ને પછી મને गिफ्टમાં મળ્યું, तो वो केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर लेना है, उसमें उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, नाउ अभी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, तो भी अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे, हम डिस्कस करते हैं इसको। देखो आपको मैंने बताया कि एज एंड व्हेन वी कंप्यूट दी कैपिटल गेन, हमें क्या करना है, we are supposed to take the full value of consideration, either it is a long term capital asset or it is the short term capital asset। दोनों के केस में हमें जो कुछ भी लेस करना है यहाँ पे ये सब वो हमें कहाँ से लेस करना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस करना है। तो अगर आप आपकी लैंड और बिल्डिंग ओके वो ट्रांसफर करते हो, ओके, तो वो केस में हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, what we should consider as a full value of consideration। देखो लैंड और बिल्डिंग में क्या होता है कि आपकी जो लैंड होती है वो बिल्डिंग होती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कारण કે કોઈ પણ જમીન હોય કોઈ પણ બિલ્ડિંગ હોય એના પર ગવર્નમેન્ટ તમારી પાસેથી કોર્પોરેશન પ્રોપર્ટી ટેક્સ લેતી હોય, તો પછી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ટ્રાન્સફર માટે તો હંમેશા કોઈ भी लैंड होती है बिल्डिंग होती है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन समझी लो कि कोई असेट है यानी એનું एक्चुअल सेल कंसिडरेशन असेट मैंने वेची 10 लाख रुपया, पर એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ ખરેખર એઝ ઓન ડેટ જોવા જઈએ તો 9 લાખ રૂપિયા થાય છે। સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ ગવર્નમેન્ટે નક્કી કરેલી કિંમત સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જ કરવા માટે, कोई पण असेट हो એને તમે વેચવા જાઓ લેન્ડ અને બિલ્ડિંગ, તો લેન્ડ અને બિલ્ડિંગ વેચીએ તો ગવર્નમેન્ટ એની જંત્રી કિંમત આપણે એને કહીએ છીએ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યू। ओके, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है, अगर मैंने असेट को बेची है, सपोज आई हैव सोल्ड द असेट फॉर द प्राइस हायर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सपोज मैंने जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है ये કેટલું છે તો કે 10 લાખ રૂપિયા છે,
ओके 10 लाख रुपया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 લાખ રૂપિયા છે. એટલે મેં જો અસેટ વેચી છે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કરતાં વધારે કિંમત તો કશો વાંધો નથી. તમારું કન્સિડરેશન શું કહેવા છે? તમારે આ 10 લાખ જ લેવાનું છે. યુ કેન સી હિયર યસ यू कैन सी हियर अगर एक्चुअल स्टैम्प सेल कंसिडरेशन, एससी का मतलब होता है सेल कंसिडरेशन फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन आपका जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या लोगे? एक्चुअल स्टैम्प सेल कंसिडरेशन जो होगा वही हम लेंगे. मतलब ये 10 लाख या 9 लाख, उसमें से अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है और वो मेरी सपोज समझ लो प्रॉपर्टी मैंने 3 लाख में परचेज की थी, उसकी एज ऑन डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है और उसको मैं बेच रहा हूँ 10 लाख में, तो मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लूंगा? जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 10 लाख वही ले लूंगा. પણ સમજી લો કોઈ પ્રોપર્ટી એવી છે જેની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ 9 લાખ રૂપિયા છે અને તમે એને વેચો છો 8 લાખ રૂપિયામાં, એટલે જંત્રી કિંમત કરતાં પણ ઓછી કિંમતે વેચો છો. પરચેસ કેટલામાં કરી હતી? 3 લાખમાં. આનો मतलब અહીંયા તમારો ઇન્ટેન્શન બહુ જ ક્લિયર છે કે તમે ટેક્સ બચાવવા માંગો છો, જંત્રી કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે વેચો છો. तो देखो ये केस के अंदर आपको आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेना है? जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो, मतलब यू हैव टू कंपेयर. सपोज दिस इज हायर तो ये लो, अगर ये हायर है तो ये लो. मतलब आपको क्या करना है? हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है और दोनों में से जो हायर होगा दैट अमाउंट विल बिकम योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. ओके देखो, so if actual sale consideration is higher than the stamp duty value, then the full value of consideration will be what? Actual stamp duty value. लेकिन अगर आपकी असेट का आप कितने में बेचते हो, सेल कंसिडरेशन आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो आपका जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही आपका क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. એટલે અહીંયા 8 લાખ નહીં પણ 9, ભલે મેં 8 લાખ में વેચી તો પણ કેપિટલ ગણવા માટે હું ફૂલ વેલ્યુ ઓફ કન્સિડરેશન કેટલી લઈશ? 9 લાખ રૂપિયા. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કરતાં ઓછી કિંમતે વેચો તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ તમારું શું બની જશે? ફૂલ વેલ્યू ऑफ कंसिडरेशन. हाउएवर 5% तक का वेरिएशन अगर आता है तो वो चलेगा. अगर 5% तक का वेरिएशन है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, ये दोनों में 5% तक का वेरिएशन है तो चलेगा. ओके, मतलब देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई ये डिफरेंस आप देख सकते हो, ये डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस इज 1 लाख रुपीज़, तो वेरिएशन इज 1 लाख. ओके, तो अगर हम ये जो सेल कंसिडरेशन है उसका 5% मैं निकालता हूँ तो 5% से सेल कंसिडरेशन का आता है वो कितना आता है? तो कि भाई 40,000. ओके, 8 लाख का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 40,000 आएगा. अगर 40,000 तक का डिफरेंस है तो चलेगा ये दोनों के बीच में. लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 लाख. मतलब 5% से ज़्यादा वेरिएशन है तो आप ये 9 लाख को ही लोगे. अगर समझ लो यहाँ मैंने ये असेट को मैंने 8,30,000 में बेची है तो वेरिएशन यू कैन सी हियर ओनली. ये 8 लाख का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो वेरिएशन कितना आता है? 40,000. और यहाँ डिफरेंस कितना है? सिर्फ 30,000 है. मतलब 5% तक का वेरिएशन ये दोनों के बीच में होगा तो चला लेंगे. लेकिन 5% से ज़्यादा होगा तो आपका जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे इफ दिस सेल कंसिडरेशन इज लेसर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ओके, तो यहाँ वही चीज़ आपको बताइए कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है मतलब 105% तक होगा, मतलब मैंने जो आपको जो एग्जाम्पल दिया वही. ओके, वो चलेगा. नाउ सी, अगर आप अनलिस्टेड शेयर बेचते हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? मतलब वो केस में आप सेल कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है अगर आप बेच रहे हो तो इफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज लेस देन और इक्वल टू, तो एक्चुअल जो सेल कंसिडरेशन है वो लेस देन और इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू होता है. सॉरी नॉट इफ लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू. तो फेयर मार्केट वैल्यू हम किसको लेंगे? सॉरी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम किसको लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को. मतलब एक सीधी बात है
તો તમારે શેર વેચવા હોય ને તો ફેર માર્કેટ વેલ્યુથી વેચો. તો ફેર માર્કેટ વેલ્યુથી ઓછી કિંમતે શેર વેચ્યા તો એ કેપિટલ ગેઇન ગણવા માટે તમારું કન્સિડરેશન શું લેવાશે? વી વિલ કન્સિડર ધી कंसिडरेशन एज दी फेयर मार्केट वैल्यू. जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको ही हम कंसिडरेशन लेंगे. ठीक है. अगर देखो कोई केस के अंदर फुल इफ द एफएमई फुल मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू इज कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमाइनेबल. अमुक वखत શું થાય કે ભાઈ તમે કોઈ અસેટ વેચી પણ એટલા બધા ટુકડામાં પૈસા આપ્યા છે કે એની જગ્યાએ તમે બીજી બધી અસેટ લીધી છે. સમજી લો કે મેં તમને મારું ઘર વેચી દીધું પણ તમે મને 2 સોનાના દાગીના આપો છો, થોડાક રૂપિયા આપો છો, પછી કે તમને આટલી સર્વિસ આપી દઈશ, તો આવું બધું આપો છો તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ डिटरमाइन द कंसिडरेशन. तो वो केस के अंदर अगर कोई भी केस के अंदर कंसिडरेशन नहीं डिटरमाइन होता तो वो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू देख लो कि आज के दिन उसकी कितनी कीमत है, वो देख लो, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट विल बी योर डिफरेंस, दैट विल बी योर कैपिटल गेन. मतलब देखो हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको कि दो असेट आपको मैंने बताई कि इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको क्या देखना है कि कोई भी असेट आप बेचते हो तो मिनिमम आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बेचनी पड़ेगी. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस में आपने बेची तो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे? हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे. और दूसरा आपको मैंने बताया अगर अनलिस्टेड शेयर होते हैं तो अनलिस्टेड शेयर होते हैं कोई भी कंपनी के, तो अनलिस्टेड शेयर को आपको मिनिमम कौन सी प्राइस से बेचना है? क्योंकि वो अनलिस्टेड शेयर की आप फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करो. सपोज हूँ कोई कंपनी अनलिस्टेड शेयर वेचूँ छूँ, ओके, जे मैं 10 रुपया में खरीद्यो तो आज हूँ 50 रुपया में वेचूँ छूँ, पर एनी फेयर मार्केट वैल्यू જોવા જઈએ તો 60 रुपया. तो भले मैं 50 में वेचो पण सेल જ્યારે હું કેપિટલ ગેઇન ગણીશ ત્યારે હું 50 નહીં લઉં પણ એની જગ્યાએ ફેર માર્કેટ વેલ્યુ લઈશ. તો સપોઝ ઇફ યુ હેવ સોલ્ડ ધી અસેટ લેસર દેન, so suppose if the sale consideration is lesser than fair market value, then your cost of the sale consideration or full value of consideration जो है वो आपका क्या बन जाएगा? fair market value. fair market value will become your full value of कंसिडरेशन. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका फेयर मार्केट वैल्यू ही बनेगा. अगर कोई भी एसेट ऐसी है जिसमें आप फेयर मार्केट उसका सेल कंसिडरेशन, सपोज मैं कोई ने एसेट वेची दीधी पण एक केसनी अंदर મને એટલા બધા ટુકડાઓમાં કે અલગ અલગ રીતના કન્સિડરેશન મળી છે તો આઈ એમ અનેબલ ટુ ડિટરમાઇન ધી સેલ કન્સિડરેશન. ઇફ યુ આર અનેબલ ટુ ડિટરમાઇન ધ સેલ કન્સિડરેશન then the fair market value will be deemed to be, એ એસેટની fair market value શોધી નાખો and fair market value will be deemed to be the full value of consideration. The fair market value will be treated as the full value of consideration. Understood? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, देखो. हेलो सर. यस सर क्लास कब तक है हमारा? अभी मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं. ठीक है, लेकिन कल भी ऐसा 2 घंटे के लिए रहेगा. कल छुट्टी है, ऐसे ऑफिशियली देखने जाए, लेकिन हम एक्स्ट्रा लेक्चर कल चालू रखेंगे. तो देखो हमें इतना नहीं डिस्कस करना है, बस कल का दिन या मैक्सिमम परसों हो सकता है. तो विद इन 1 or 2 days आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. सो यहाँ तक आप सबको समझ में आया? एनीवन हैज एनी डाउट हियर अप टू दिस स्टेज? हेलो. No sir. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर. एक बार आप खड़े रहना, अभी मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर. ओके.